امرتسری کی کتاب ہے، میں جب اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر جامعہ اسلامیہ فیضان کے اندر میں پڑھ رہا تھا 2017 کے اندر، تو میرے آنسو آ گئے تھے کہ آج کیا کرتے ہیں لوگ گھروں میں آ کر کے شراب لا کر کے شراب پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، لیکن خود کھیلتے ہیں تو اپنے اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کتاب موجود ہے۔ عمر کے اندر کتنے ایسے نوجوانوں کے دیکھا، اگر اسی علاقے میں جائیں گے، اسی علاقے میں جائیں گے، اللہ کو فضل و کرم سے 19 طالب علم میرا فارغ ہو کر آج کے ڈیٹ میں پڑھا رہے ہیں، 19 طالب علم آج کے ڈیٹ میں فارغ ہو کر میرا پڑھا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں لوگ کیا ہے جوئے کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے، اور یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ بیڑی کھانے سے بیڑی کے اندر تو نشہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر تو نشہ نہیں ہے۔ میں کہا وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف جو آیت کے کھلے طور پر اعلان کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث اعلان کر رہی ہے کہ یعنی شراب جس کے اندر ذرا سا بھی بو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ آپ چاہے گل کے اندر ہو، چاہے یعنی کسی طریقے کی یعنی نشہ ہو، چاہے بیڑی ہو، چاہے گٹکا ہو، چاہے سگریٹ ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کچھ دور رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے من زنا اور اسی سے من شرب الخمر، جس نے بھی اس دنیا کے اندر یعنی شراب پیا، وہ سکر لہو شراب پیا اور کیا ہے زنا کے لا تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن وہ نماز پڑھنے والوں اور نماز پڑھتے بھی ہیں اور دعا بھی کھیلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بیڑی بھی پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر نشے کی چیز استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نشے کی چیز استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان کیا کرتا ہے شراب پیتا ہے اور اسی طرح کے جوئے کھیلتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں۔ آپ میں ایک چھوٹے بچے ادنا سا بچہ جو کلاس 3 اور 4 میں پڑھنے والے بچے، ایک چھوٹی سی تقریر کی کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہوں گے، جس آپ تقریر کیسے کریں اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آیت کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، اللہ کے بندوں، ایک اللہ پر وشواس کرنے والوں، ایک اللہ کے ماننے والوں، جب تمہیں پیدا کرنے والا ایک ایشور ہے، جب تمہاری سانس میں ڈور چلانے والا ایک اللہ ہے، جب تمہیں چلانے والا اللہ ہے، جب تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، جب تمہیں اس دنیا کے اندر لانے والا اللہ ہے، اس دنیا سے لے جانے والا پرماتما ایک ہی ہے۔ جب تجھے وشواس ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی آیت موجود ہے، انما الخمر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جس کا ایمان پختہ ہوگا، جو خلوص للہیت کے ساتھ کیا کریں گے یعنی کہ اللہ کو مانیں گے، وہ کبھی بھی شراب، جوا، نشہ اور اسی طریقے سے خود خانے میں آج ہم دیکھتے ہیں اسی ٹیکنا کے سرزمین پر میں نے یہاں پر آیا اور دیکھا ابھی عرس کا میلہ لگا، کتنے ہمارے نوجوان اسی گاؤں کے کتنے لوگ چلے گئے عرس کے میلہ میں، دیکھنا کہ مزار پر وہ اللہ کے بندو تم یہ کہو گے ہم تو مزار پر جا کر چادریں نہیں چڑھاتے ہیں، ہم تو وہاں جا کر ہم تو کیا کرتے ہیں پیروں کے پاس کچھ نہیں مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کا آپ کو یاد ہے کہ آپ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں کیا کرتے ہیں پیروں کے پیر کو پوجا نہیں کرتے، وہاں جا کر سجدہ نہیں کرتے، وہاں جا کر سجدہ نہیں دعا نہیں مانگتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے آپ وہاں جا کر کے شرک کا سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو اگر تمہارا ایمان ہوگا تو آپ کسی عرس کے میلہ پر آپ نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو بچا کر
करके रखेंगे। जो अल्लाह का ईमानदार बंदा होगा वो जुआ, शराब और इसी से यानी यानी तीर जिसे कहते हैं, आज के डेट में नहीं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सीरत पढ़ते हैं और इसी तरीके से उठाइए सीरत की किताब, सीरत और नुमान उठाइए और रहीकुल मकबूल उठाइए, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी की किताब मौजूद है। आप एक एक किताबों पर और आप गर्दानी करेंगे, आपको पता चलेगा क्या है। पहले जमाने में लोग यानी पहले कबूतर छोड़ते थे और अपने किस्मत को आजमाया करते थे। कबूतर इधर जाए तो हम अपने सफर का यानी तय नहीं करेंगे, अगर इधर जाए तो सफर तय करेंगे। तो बहुत बातें बहुत सारी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, खुलासा कलाम यह है कि अगर आपका ईमान है, आप अगर अल्लाह को मानते हैं, एक वहदहू ला शरीक लहू, एक खालिक मानते हैं, तो आपका ईमान अगर पुख्ता होगा, आप शराब और जुआ में हाथ नहीं लगाएंगे। एक वाकया की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी शराब पीता था और पहले शुरुआत में शराब कम पीते थे, लेकिन अचानक एक दिन बहुत ज्यादा शराब पी लिए और शराब पी करके घर लौट रहे होते हैं। घर में बीवी भी बैठी हुई है और बेटी भी मौजूद है, लेकिन वो आदमी शराब पी करके घर तशरीफ लाते हैं और वो यानी कोई दूसरा नहीं, अल्लाह के नबी के दौर में सहाबी रसूल है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल है। वो घर पहुंचते हैं, एक तरफ बीवी बैठी हुई है, एक तरफ उनकी बेटी बैठी हुई है। वो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिए, नशा में चूर थे। अपनी बीवी को पकड़ने के बजाय अपनी बेटी को पकड़ लिए और कमरे के अंदर लेकर के चले गए और इत्तेफाकन उसकी बीवी यानी बीवी दूर में बैठी हुई थी, नजर पड़ी है। मेरे शोहर को उनकी बेटी की इज्जत को तार तार करने के लिए चले गए, इतना दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को अपने शोहर के हाथ से छुड़ा ले करके गए और उनके बाद अपने शोहर को यानी अंदर बंद कर दिए। यानी उनका शोहर का जब नशा उतरा तो उनके शोहर ने अंदर से दरवाजा खटखटाया, अगर यानी कई मरतबा खटखटाए तो उनकी बीवी ने आखिर के दरवाजा खोला और उनके बाद उनके शोहर कहने लगे, ए मेरी बीवी, तुम जल्दी से बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है, तुमने मुझे कमरे के अंदर क्यों बंद किए। तो उनकी बीवी कहने लगी, ये मेरे शोहर, मैं आपको कैसे बताऊं, अगर जमीन अगर यहाँ फट जाती तो मेरे लिए बेहतर ये होता, तो मैं जमीन के अंदर जमीन दोष हो जाते, लेकिन मैं बयान करना गवारा नहीं है। तो बयान करिए मेरी बीवी, आखिरकार मजबूर होकर बयान किए कि आप अपनी बेटियों के साथ वो गंदी काम करने जा रहे थे जो मुझसे करते हैं आप। ये सुन करके हुआ वो सहाबी रसूल रोने लगे और वो भी अफसोस के मारे यानी सर पीटने लगे। तो आप देखिए नशा के कितने यानी क्या है, नशा पीने वाले नशा पी करके क्या करते हैं, अपनी बीवी और बेटियों के दरमियान फर्क नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक की बात नहीं, मैं आपको ये प्रूव करके आपको बता सकता हूँ, मैं अपने गांव के बगल में एक एग्जाम्पल दे करके बता सकता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से बातें हैं, मैं जानकारी इस बात की मुझे मैं जानता हूँ, उस आदमी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये बात हमारे घर के अगल इर्द गिर्द के है। आपको बताता चलूं, एक आदमी हमारे घर के पड़ोस में, ज्यादा दूर घर नहीं है, आप बराबारी की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के जाएंगे और बराबारी की सरजमीन में एक आदमी ऐसा भी है जो जुए में अपनी बीवी को हार बैठे। ये है जुआ, जुआ में अपनी बीवी का भी सौदा कर बैठते हैं, लोग कतराते नहीं है। आपको बताता चलूं, यानी आप सूरह काफिरून जानते होंगे, सूरह काफिरून का तर्जुमा और उसका शान नुज़ूल क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब्दुर्रहमान का नाम आपको सुना होंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने यानी चंद यानी साथियों का इनवाइट का जन आदमियों को दावत पर बुलाए और वो आदमी अब्दुर्रहमान के घर तशरीफ लाते हैं और खाना खाने के बाद शराब भी पी लेते हैं, जुआ भी यानी क्या करते हैं, शराब पीने के बाद उसका अकल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी वक्त में यानी असर की असर के अज़ान होती है, मस्जिद से यानी आवाज आती है, हय्या अलस सलात, आओ नमाज की तरफ। यानी अब्दुर्रहमान के मेहमान के यानी कानों में आवाज पहुंचती है, उनके
नौजवान आवाज सुन करके मस्जिद की तरफ रुख करते हैं और आकर के नमाज पढ़ाने शुरू कर देते हैं। या बाज लोगों का कहना है मगरिब चाहे किसी भी वक्त की नमाज हो, मेरे कहने का मतलब ही है लोगों को इनवाइट किया, लोग आए, खाना भी खाए, शराब भी पिए, नमाज पढ़ने चले गए और इमाम बने। इमाम बनने के बाद कुलिया अय्युहल काफिरून की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत करते करते यानी इस आयत में पहुंचते हैं ला अबुदु मा ताबुदून, कुरान करीम के अंदर मौजूद है, लेकिन उसने नशी की हालत में पढ़ दिया मा अबुदु मा ताबुदून। ये मुशरिक लोगों यानी जिस चीज की तुम लोग पूजा पाठ कर रहे हो, जिस चीज की तुम सजदा कर रहे हो, मा अबुदु मा ताबुदून, जिस चीज की तुम लोग सजदा करते हो मैं उसी चीज की पूजा पाठ कर रहा हूँ। तब जाकर कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। और इसका और भी बहुत सारे यानी वाक़यात मौजूद हैं इस ताल्लुक से। खुलासा ये कलाम ये है, निचोड़ ये है कि आप क्या है, अगर आपका ईमान है अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, यौम आखिरत पर, तो आप जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे और इसी तरीके से दूसरे जो बिगड़ गंदे काम मौजूद है इस धरती को पर उसका निकल नहीं जाएंगे। जिस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पता है अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका भी ईमान अल्लाह पर होगा, यौम आखिरत पर होगा, यौम आखिरत पर होगा, फला यशरबुल खम्र, वो शराब नहीं पिएगा, वो शराब नहीं पिएगा। आज हमारे नौजवान यहाँ पर मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरी जबान से बातें निकल रही है, मेरे बाप के घर से मैं नहीं बोल रहा, कुरान और हदीस की बात होती है, बात जबान मेरी चलती है, लेकिन बात अल्लाह वल्लाह के नबी की होती है। इसीलिए मैं आपसे अदबन, आपका आजिज़ाना शाकराना आपसे इल्तिमास है, आपसे गुजारिश है कि आप अगर आपका ईमान है अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फला यशरबुल खम्र, जिसका भी ईमान होगा वो शराब नहीं पिएगा। और इंग्लिश पढ़ने वालों को अच्छी तरीके से पता है, आज हमसे हमारे उम्र के, हमारे एज के यानी कितने भी ऐसे नौजवान हैं, जब अजान का टाइम होता है तो अपने साथियों को कहते हैं चलो चलो, वो अल्लाह के बंदो और नौजवानों, कम से कम तुम अपने साथियों को ये कह देते जब मस्जिद में अजान होती है, ये मेरे दोस्त चलो मस्जिद की तरफ चलो, जब कुरान मस्जिद से आवाज होती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो तुम क्या करते हो, अपने साथियों को लेकर मार्केट की तरफ रुख करते हो। किस तरीके से क्या है, अगर उसी वक्त अगर क्या करते हैं कोई अपने साथियों को कहता है चलो जुए खेलते हैं, चलो शराब पीते हैं, ये गुनाह है, लेकिन अगर आप अपने साथियों को कम से कम ये कह देते हैं कि चलो मस्जिद की तरफ इबादत कर लेते हैं, तो जब तक अगर आपके कहने से वो बंदा अगर नमाजी बन जाता यानी इबादत करने लग जाता, शराब पीना छोड़ देता, आप कह देते शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो क़यामत के सुबह तक यार यहाँ तक है हदीस का अल्फाज है, अगर वो इंसान जब तक जिएगा अगर इबादत करेगा उसको जितना अजर और सवाब मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। जिस तरीके से यानी इंग्लिश पढ़ने वालों को अच्छी तरीके से पता है, लेट्स मेक इट पॉइंट नॉट टू स्कीप सलात, नॉट टू स्कीप नमाज। आज चलो ठान ले, आज से दिल में ठान लेते हैं आज नॉट टू स्कीप नमाज, आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से इकरा इंग्लिश के अंदर मौजूद है और इसी तरीके से यानी जब नूरुल ऐन यानी सल्फी रहमाहुल्लाह नूरुल ऐन सल्फी की मैं जब यानी इंग्लिश तर्जमा करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो मुझे अफसोस होता है आज हमारे नौजवान अपने आप को मुसलमान कह रहा है, उर्दू पढ़ना नहीं आता। आज हर भाषा के अंदर, हर जबान के अंदर कुरान करीम मौजूद है और सबसे आसान अल्फाज में इंग्लिश कुरान अगर मौजूद है तो माना नूरुल ऐन। और इसी तरीके से मौना भंजर के एक बहुत बड़े आलिम है यानी खेदुपुरा के, उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में मौजूद है, वो इंग्लिश में लिख दोगे सबसे पहले ये बात लिखते हैं, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर लाइफ, एट फर्स्ट you will have to concept of clear, after that you can successful concept of Islam। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाम के कंसेप्ट को, इस्लाम के बेसिक को, इस्लाम को अंदर जो फंडामेंटल राइट है आप उसके मुताबिक आपको जिंदगी
जिंदगी गुजारना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, अदरवाइज आप विजय हासिल नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया के अंदर भी आपके अंदर क्या है, खसारा है, और आखिरत में तो आपके लिए खसारा है ही। इसीलिए आपसे यानी अदब गुजारिश है, अगर किसी घर में अगर नशा और शराब अगर कोई इंसान पीता है, यानी शराब पीता है, जुआ खेलता है, अपने आप को उससे दूर कर ले। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम आप क्या करोगे, अपने आप को उससे बचा लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और शैतान तो यही चाहता है, शैतान तो एक ईमान वालों को, एक अल्लाह वालों को, एक नबी के मानने वालों को, एक अल्लाह का पूजा पाठ करने वालों को तो क्या करता है शैतान, अगर शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले इंसान को दो चीजों से रोक देता है। पहली नंबर, जो शराब पीता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसका बहुत बड़ी वईद है, उसके लिए फटकार है। क्या फटकार है? शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले के सिलसिले में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला उसे दो चीज से महरूम कर देता है, दो चीज से महरूम कर देता है। इसीलिए अगर आप शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नशे की चीज को इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आप को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। आपको मैं बताता चलूं, उसके बाद दो चीजों से महरूम अल्लाह कैसे करता है आपको मैं बताऊंगा। इससे कबल एक किस्सा आप सुन लीजिए, एक वाकया आप सुन लीजिए, ये किताबों के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का फजल व करम से एक एक बात बिल्कुल किताब और तला किताबों के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो अक्ल सलीम वो दे दिया है, वो एबिलिटी, वो क्षमता अता कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान व करम है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, अल्लाह तबारक व तआला ने सही और गलत को पहचानने का अक्ल सलीम मुझे अता कर दिया है। तो मैं आपको एक वाकया की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक वाकया मौजूद है, एक आदमी शराब पी लिया और शराब पीने के बाद रास्ते में चलते हुए गटर में गिर गया, जिसे हम लोग हाथ के लोग कहते हैं ड्रेन में गिर गया, नाली में गिर गया। और नाली में गिरने के बाद वो आदमी क्या करता है, नाली से जो पानी जा रहा होता है, पानी बहता है, उस पानी को उठाता है और उठाने के बाद ये कहता है शराब के नशे में, हाजा माउन, ये पानी क्या है, हाजा जमजमुन, यानी ये जमजम का पानी है, ये यानी पानी जमजम का पानी है। ये नालायक, ये नाला कम से कम अकल से सोच लिए होते, अगर जमजम का पानी यही होता, अगर ये गटर से पानी जो यानी क्या लेटरिन का पानी चल रहा होता है, अगर यही से यानी जमजम का पानी होता तो तुम क्या, मदीना में लोग हज करने जाते हैं, वहां से पानी लाने की क्या जरूरत थी? लोग परेशान होकर के लेकर के आते हैं और वो आदमी नशे में चूर होकर के पानी को उठाता है और कहता है ये तो जमजम का पानी है, ये तो जमजम का पानी है, और ये यानी चिल्लाते रहता है। आखिर में वो आदमी का जब होश आता है और जब उसके आंखें यानी क्या है खुलते नशे में बंद हो जाता है, कुछ अकल में काम करना बंद कर देता है, गटर के बगल में पड़ा रहता है। जब आंख खुलती है तब उसका एहसास होता है, अरे मैं तो फला जगह पर था, आप ही मैं क्या हूँ, यानी गटर के बगल में, ट्रेन के बगल में गिरा हुआ हो। जब उसका होश आया तो उनके इर्द गिर्द लोगों ने उससे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा मैं तो फला जगह पर गया था, मैं वहां पर शराब पी लिए और शराब की नशे में मैं यहाँ पर गिर गया। उसके बगल में खड़े आदमी ने पूछा कि ये अल्लाह के बंदे, तुमने इस नशे की हालत में ये इस पानी को, इस गंदे पानी को क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये जमजम का पानी है, ये जमजम का कुएं का पानी है। तब उस आदमी को अकल बात समझ में आई और उसने उस दिन तौबा किया, आज से मैं क्या शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। उस आदमी ने तैयार कर लिया और घर लौटे। और उसके बाद उसके बगल में जो आदमी खड़ा था उसने उस आदमी को समझाया। अब देखिए उस आदमी के समझाने के नतीजे में उसने शराब पीना बंद कर दिए। अब उस आदमी को समझाने की वजह से अब उसने शराब को छोड़ा। तो जिस आदमी ने समझाया जब तक वो आदमी जिएगा, जिए ना जिए, लेकिन उसका क्या है, उसके हाथ में दुआ करे या ना करे, उसको नेकियां मिलती रहेगी। इसीलिए अल्लाह के बंदों, अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, कोई इंसान बने के काम कर रहा है, ग्रेड ऑफ द सीन कर रहा है, ऐसे हालत में तुम उसे अपने हाथ से रोको, हाथ से रोक
रोकने की क्षमता नहीं है, जबान से रोको, जबान की भी ताकत नहीं है। हदीस की किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है, 40 के हदीस के अंदर मौजूद है, बुलबुल मरम उठाई है उसके अंदर भी मौजूद है, आपकी सारी छोटी छोटी किताबों के अंदर भी हदीस मौजूद है। मैं ये कहने का मतलब ये है, वो अल्लाह के बंदे शराब पीना, जुए खेलना, अपने आप को जुए से शराब से क्या कर दीजिए, दूर रखिए, अपने आप को अपने उससे बचा करके रखिए, सेफ रखिए। मैं आपको बताता चलूं, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत इसके आप नाम भी जानते होंगे, सुन भी रहे होंगे, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब है, उठाइए, उसके अंदर मौजूद है। जो शराब पीने वाले और जुआ खेलने वालों से मैं अपील करता हूँ, आप उठाइए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब है। मैं जब उस किताब को अपने हाथ में उठाकर जामिया इस्लामिया फैजान के अंदर मैं पढ़ रहा था 2017 के अंदर, तो मेरे आस आ गए थे। कहा क्या करते हैं लोग, घरों में आकर के शराब ला करके शराब पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, लेकिन खुद खेलते हैं तो अपने औलाद को कैसे बचाएंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब मौजूद है, हुज्जतुल इस्लाम के अंदर मौजूद है, आप उठाइए, किताब मौजूद है, किताब दस्तयाब है, उस किताब के अंदर इतनी बात मौजूद है। अगर कोई इंसान क्या करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, उस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है, अगर कोई शराब पीता है या जुआ खेलता है तो उस किताब के अंदर मौजूद है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब मौजूद है, उस किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो शराब पीता है या जुआ खेलता है, गोया ने अपने दोनों हाथों को सूअर के खून से लथपथ करता है। सूअर के खून, सूअर जानते हैं ना, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। अगर आपका जी चाहे तो आप भी आप शराब पीजिए। मेरे बात कहने की मुझे जो बात मैंने बात कह दी है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप पीते रहिए, और तब नहीं समझ में रहे आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज भी ये बात सुनने के बाद अब शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हदीस के अंदर मौजूद है सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब के अंदर कि कोई इंसान अगर शराब जुए में यानी क्या करता है, शराब पीता है या उसको टच करता है और जुए खेलता है, तो गोया के अपने दोनों हाथों को, दोनों हैंड्स को यानी सूअर के खून में क्या करता है, रंगता है। कोई इंसान ये चाहेगा कि अपने हाथ को सूअर के खून को अपने हाथ में ले, अगर नहीं चाहेगा तो फिर क्यों आप शराब पी रहे हैं, क्यों फिर जुआ खेलते हैं? आप ही बताइए, आप ही फैसला कीजिए ना, फिर क्यों आप क्या करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। चलो चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कई मकामात पर, मेरा टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं बातों को मुख्तसर करते हुए अपने बातों को इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत नाजिल होती है। कौन सी आयत आप अच्छी तरीके से कुरान पढ़ने वाले जानते होंगे, लेकिन इससे कबल अच्छा मैं आपको ये कह देना चाहूंगा, मेरा आपसे अपील है, आपसे बहुत बड़ा इंतमास है, अगर आप कुरान को